सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी भुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। Honorable Minister for Home and Cooperation, Manya Amit Shah ji. I welcome all of you for this conclave, the New India, a New Kerala. The relevance of this conclave is immense, as it serves as a powerful platform to fully integrate Kerala into the vision of Vikasit Bharat. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the nation is surging ahead, and now it is time for the God's own country, Kerala, to reach new heights in infrastructure, investment, employment, and holistic development. With the presence of Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, this dialogue will connect the people of Kerala with the benefits of central schemes, models of security and good governance, and vision for change in 2026, a historic step towards building a new, prosperous, and self-reliant Kerala. നവഭാരതം പുതിയ കേരളം. ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ പ്രസക്തി അതീവ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസിത ഭാരതത്തിൻ്റെ സങ്കല്പവുമായി പൂർണ്ണമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ വേദിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ദീർഘദർശിയായ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ആയ കേരളത്തിനും ഒരു സമയമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിക്ഷേപം, തൊഴിൽ, സമഗ്ര വികസനം എന്നിവയുടെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ സ്പർശിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹോം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അമിത് ഷാജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ സംവാദം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം, സുരക്ഷയുടെയും നല്ല ഭരണത്തിൻ്റെയും മാതൃകകൾ, 2026 മാറ്റത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പുതിയ സമ്പന്നമായ ആത്മനിർഭര കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ കാൽവയ്പ്. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक और जोरदार स्वागत. सुरक्षित, एकजुट और विकसित भारत के पीछे का टूट संकल्प. A warm and thunderous welcome to Honorable Union Minister Sri Amit Shah ji. The unwavering resolve behind a secure, united and developed Bharat. I now welcome all of you, the dignitaries, the invitees, and the delegates who are attending this conclave. On behalf of the Kerala Kaumudi family, who is celebrating the 114th year of its establishment, I now request the Chief Editor, Sri Deepu Ravi, for his presidential address. A responsible democracy rests on 3 pillars: a strong leadership, an informed citizenry, and a fearless press. Kerala Kaumudi has stood at this intersection for more than a century. It is my privilege to warmly welcome the Honorable Union Home Minister of India, Sri Amit Shah ji, whose decisive leadership and unwavering commitment to national security have strengthened India's unity and resilience. Our first Home Minister,
Sardar Vallabhai Patel is hailed as the Iron Man of India who unified this nation. After almost 7 decades, under Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we now have a Home Minister who can be described as the man who finally integrated Kashmir with the rest of India, who put down the decades-long Maoist insurgency with an iron hand. Truly the Iron Man of modern India. His presence today greatly honors this occasion. Respected dignitaries, honored award winners, distinguished guests, friends from the media, our readers, beloved viewers, and well-wishers. I stand before you with immense pride as the chief editor of Kerala Kaumudi, a publication that has chronicled the pulse of Kerala for over a century, its struggles, aspirations, and triumphs. Founded in 1911 by my great-grandfather Sri C.V. Kunyaraman at the behest of Srinarayana Gurudevan, Kerala Kaumudi began as a weekly and was later transformed into a morning daily by my grandfather Sri K. Sukumaran, a Padma Bhushan recipient who dedicated his life to social reform and the fight against caste discrimination. On this occasion, we are also honoring 5 eminent individuals whose contributions have advanced Kerala's economic growth and social development. The Kerala Kaumudi Awards recognize excellence and inspire future generations. I congratulate all the award recipients. In 2011, while inaugurating our centenary celebrations in this very city, our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, observed that a newspaper completing 100 years plays a vital role in shaping the history of a nation. Today, 114 years and 4 generations later, we remain committed to those founding values: serving society, strengthening democracy, and contributing to nation building. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, India has witnessed a transformation. From a much ignored sleeping giant, India has emerged as a global power and today stands as the 4th largest economy in the world. UPI has revolutionized digital payments, growing from 92 crore transactions to over 13,000 crores annually. India has expanded its highways, airports, railways, and digital infrastructure at record speed. Supplied COVID-19 vaccines to over 100 countries, became the first nation to land on the south pole of the moon, and strengthened defense reliance under Atmanirbhar Bharat initiative. Operation Sindoor has demonstrated India's military capability, political resolve, and the vision of its leaders. इतना बात करना है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री और आप श्री अमित शाह जी हमारा गृह मंत्री होने के बाद भारतवासियों थोड़ा सुकून से सो रहा है. As India rises, Kerala too is progressing. Under Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, the state's GSDP has more than doubled to 12.6 lakh crore over the past decade. Kerala became the first state to implement comprehensive e-governance in India, and projects such as the Vizhinjam Deep Sea Port hold the promise of placing Kerala firmly on the global trade map. At the same time, we grapple with challenges like public debt that has tripled to 4.8 crores in the last 10 years, youth migration, industrial stagnation, agriculture decline, and growing unemployment. These require serious attention. Despite our achievements, we must create greater opportunities within our own state. Kerala stands today at a defining moment. The coming decade can transform us into a vibrant, developed state through shared vision, constructive politics, and collective effort. In this spirit, Kerala Kaumudi will organize a series of conclaves and debates to deliberate on the challenges and solutions for a Purna
Vikasit Kerala. Through fearless journalism and informed dialogue, we will continue to contribute meaningfully to Kerala's future. But remember, history will not judge us by what we discuss in conclaves and debates, but by what we dare to change through them. Thank you. Jai Hind. Thank you, Deepu, for that excellent presidential address. And I now request our beloved Home Minister Amit Shah ji to light the traditional lamp, Deepa Prachulan. We'll now have a short video about the awardees, and after that the awards will be distributed by Honorable Minister. Mr. R. Nadarajan, Managing Director, Kannan Handlooms. Established 104 years ago at Balaramapuram, the land of handlooms in Thiruvananthapuram, Kannan Handlooms is a pioneer in the industry. Mr. Vishnu Bhaktan, Managing Director of New Rajasthan Marbles. He built his company up from scratch through hard work, integrity and perseverance. Transparency in pricing and an uncompromising commitment to quality have earned the brand the trust of millions. Dr. V. Sunil Kumar, Managing Director, Sapphire Entrance Coaching, is an academician who has grown generations of students to successfully tackle the challenging entrance examinations. Dr. Amal Shankar P. is a medical professional and entrepreneur who balances the clinical expertise with executive leadership in the healthcare and retail sectors. He is the founder and managing director of the medical startup Madura Medipark and the director of Omega Jewelers, a high-end retail brand. Mr. Roy Christie, Managing Director, Rinergy Systems Private Limited. Mr. Roy Christie established the solar company with the founding mission of expanding the reach and scope of clean renewable energy, thereby ensuring a sustainable future for generations to come. I'll now call upon the names of the awardees. Kindly line up and receive your awards from Honorable Minister Sri Amit Shah ji. Sri R. Natarajan, Managing Director, Kannan Handlooms. Sri Vishnu Bhaktan, Managing Director of New Kerala, New Rajasthan Marbles. Dr. V. Sunil Kumar, Managing Director, Sapphire Group. Dr. Amal Shankar P., Director, Omega Jewelers. Sri Roy Christie, Managing Director, Rinergy Systems Private Limited. Sri Roy Christie. Thank you and congratulations to all the awardees. And I now request the Chief Editor of Kerala Kaumudi to kindly present a memento and adorn him with a shawl to Honorable Minister Sri Amit Shah. Thank you so very much, Sri Amit Shah ji, for gracing the occasion. And then I request you
you to kindly deliver your inaugural address. आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपू रवि जी, मेरे साथ यहाँ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, श्री वी मुरलीधरन जी और हमारे प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं सबसे पहले केरल कौमुदी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने द न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम पर जो परिसंवाद है उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया है। एक्चुअल में मेरा एक छोटा सा कंप्लेन भी है कि आपने हमारा ही थीम केरल कौमुदी के थीम के नाते उठा लिया है। द न्यू इंडिया ए न्यू केरल एक कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना में रखा है। विकसित भारत की संकल्पना विकसित केरल से होकर जाती है। विकसित भारत का मतलब है भारत का हर राज्य अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल के साथ विकसित हो, और विकसित राज्य की कल्पना है, मतलब विकसित केरल की कल्पना है। विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सबकी आस्थाओं का सम्मान करने वाला, आस्थाओं को सुरक्षित रखने वाला केरल। तीन पहलू, एक डेवलपमेंट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और व्यक्ति की खुद की पर्सनल माली हालत, मतलब उसकी खुद की इनकम में बढ़ोतरी करना, ये सब मिलकर विकसित केरल बनता है। विकसित केरल में हर नागरिक की सुरक्षा की भी चिंता होनी चाहिए, वो सुरक्षित केरल बनता है। और हर प्रकार के विश्वास का, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय से हो, अपने विश्वास का संरक्षण होना चाहिए, इसकी आस्था का संरक्षण होना चाहिए। ये तीन मिलाकर विकसित केरल मतलब न्यू केरल की रचना होती है। केरल कौमुदी एक प्रकार से भारत के स्थानीय भाषाओं के पत्रकारिता में एक विश्वसनीय आवाज के रूप में केरल कौमुदी उभर कर आया है। लंबे समय में आप काम करते 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 एक प्रकार से केरल की जनता की आत्मा की आवाज केरल कौमुदी बना है। और मैं मानता हूं कि ये जनता की भावना, जन संस्कृति और चेतना, ये तीनों का एक प्रकार से प्रतिरूप बना है। आज केरल कौमुदी ने द न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम जो रखा है, उसमें न्यू इंडिया की कल्पना को मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूं। हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत आकांक्षी है, भविष्य की उन्मत्त भविष्य के लिए, भविष्य के प्रगति के लिए जिसके मन में होप है, ऐसा आकांक्षी भारत। एक आत्मनिर्भर भारत और एक आत्मविश्वासी भारत, ये तीन मिलकर नए भारत की कल्पना होती है। और इसके लिए भारत के हर राज्य को अपने ऑप्टिमम लेवल पर विकसित करना, ये हमारा लक्ष्य है। हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के
ऊपर उठकर परफॉर्मेंस के आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का इस देश में मोदी जी ने शुरुआत किया है, जो कंप्लेन की जगह कमिटमेंट में विश्वास रखता हो। कंप्लेंट्स होगी ही, देश कितना भी विकसित होगा, कंप्लेंट्स होगी, परंतु कमिटमेंट होना चाहिए कि हम हर कंप्लेन का निराकरण करेंगे और अपीजमेंट की जगह, तुष्टीकरण की जगह डेवलपमेंट कर कर किसी को अपीज न करना पड़े, ऐसी सोसाइटी की रचना में जो भरोसा करता हो। हम साइलेंस से स्ट्रेंथ की ओर जाना चाहते हैं। जो चुप बैठे हैं, दबकर बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी हो को उनको चुप रहने की जरूरत न पड़े। हम डाउट से डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं और डिले से डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस 6 मुद्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो आज की भारत की कल्पना सटीक तरीके से नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। हमने विकसित केरल की कल्पना की है। केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। केरल की संस्कृति, केरल का साहित्य और केरल का एजुकेशन के प्रति लगाव, ये पूरे भारतवर्ष में केरल को टॉप का राज्य बनाता है। इसमें पूरे भारत का विश्वास है। यहाँ पर आयुर्वेद से लेकर आईटी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक और बैकवाटर से लेकर बौद्धिक विमर्श तक, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तक, ये सब जगह में केरल ने पूरे भारत में बेस्ट परफॉर्म किया है और केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। मगर यहाँ पर एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, फिर एलडीएफ, यूडीएफ, ये जो क्रम चला है उसने पॉलिटिक्स में एक प्रकार की स्टैग्नेंसी, स्थगितता लाने का काम किया है। ये दोनों लोग, दोनों गठबंधन सुनिश्चित है, या तो हम करेंगे या वो करेंगे। अब केरल में अभी अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुआ उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित केरल की कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से, रेड फोर्ट से रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर की बात करते हैं और पावर जनरेशन की बात करने के साथ साथ प्लेनेट प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। इतनी डाइवर्स डेवलपमेंट की कल्पना शायद ही किसी नेता ने भारत में लेकर आया और एक नया आत्मविश्वास जगाने का काम किया। और इसी का परिणाम है कि हम 11 साल में आज दुनिया चकाचौंध होकर देख रही है, ऐसा भारत बना पाए हैं। मैं 2014 की बात करता हूं। 2014 में हम दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। इकोनॉमी के टेबल में हम 11th प्लेस पर थे। सिर्फ 11 वर्ष में हम 11th प्लेस से आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और आप लोग 4th लार्जेस्ट में तालियां बजाते हैं, हर्ष करते हैं, मगर 2027 दिसंबर के पहले हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग ये परसेंटेज का आधार ढूंढना बड़ा दिक्कत है, मगर किसी युवा ने ढूंढकर एक फॉर्मूला बनाया है, 610% इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। और आज दुनिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं। ये बताता है कि हमने 2014 से 25 तक 11 साल में कितना अचीव किया है।
हमने 11 साल में 60 करोड़ गरीबों के लिए, 60 करोड़ गरीबों के लिए उनको घर दिया, घर में गैस दिया, उनको पीने का पानी दिया, बिजली दी है, 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया है और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। तो एक प्रकार से 60 करोड़ गरीबों के जीवन में वो जो लोग 2 पीढ़ी से संघर्ष कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में समाप्त कर दिया और एक 10 साल के अंदर ही 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बना, सिर्फ भारत ने हर प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम लाकर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया है, सबसे ज्यादा FDI हम नहीं लाए, एक्सपोर्ट को अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर सिर्फ नहीं ले गए हैं, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले जाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये भारत के कंप्लीट डेवलपमेंट का मॉडल है। हमने कई प्रकार के अनेक प्रयोग कर इसको सिद्ध किया है। आज स्पेस के अंदर भारत का दबदबा है, आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का दबदबा है, R&D के 35 सेगमेंट में से 15 सेगमेंट में हम 1 से 4 में खड़े हैं और बाकी सभी सेगमेंट में 1 to 10 है और 10 साल पहले R&D में एक भी सेगमेंट में हम 1 से 5 में नहीं थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बताता है कि फ्यूचर भारत का है। सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने वाला कोई एक देश बना है 10 साल में एवरेज, तो वो हमारा भारत बना है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं, यहाँ R&D हो रहा है और फ्यूचर भारत की रजिस्टर्ड पेटेंट्स का है। वो आज पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, इसको फील कर रही है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार NDA की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में NDA को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, NDA के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने देश में कई चुनाव ऐसे लड़े हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आसाम में हमारी 3 असेंबली सीट थी, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के बाद बनी। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी,
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड किया। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और ये सभी पूर्ण बहुमत की सरकार बार बार चुनकर आई है, 2 बार 3 बार चुनकर आई है। और यहाँ पर तो हमारे पास अच्छा खासा 20% का एक बेस बना है और इस बार ग्रामीण केरल में भी हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है और हम एक नारा लेकर केरल की जनता के सामने गए हैं, विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला केरल, जो केरल जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो आप किसी के लिए अपीसमेंट करते ही दूसरे को अन्याय कर देते हो और हम वो पार्टी है जो अपीसमेंट में नहीं मानती है, सभी के साथ न्याय करती है। आज केरल की आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बहुत सारे लोग, विशेषकर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को एडेप्ट करे हुए राइटर्स हैं, वो वर्णन करते हैं क्या कमी है, सब डेवलपमेंट है। मगर मैं बहुत ब्लंटली आज कहना चाहता हूं, समग्र केरल के विकास की चिंता करे, मतलब केरल के हर नागरिक के विकास की चिंता करे, तो रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस जो आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और बढ़ना चाहिए, परंतु इससे केरल का हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। जिनके परिवार में से कोई विदेश में नहीं है, उनका क्या होगा? हमने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी की जगह सबको डेवलप करने वाली इकोनॉमी का मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी भी इसका हिस्सा होगा। रेमिटेंस को कम नहीं करना है, परंतु और भी एवेन्यू खड़े करने पड़ेंगे। टूरिज्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है उसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल के अंदर दरियाई व्यापार का जो पोटेंशियल पड़ा है उसको 100% एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल का आयुर्वेद, केरल की औषधियाँ और केरल के मसाले वो वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और केरल के अंदर डेटा स्टोरेज से लेकर आईटी से लेकर सेमीकंडक्टर तक के ढेर सारे ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें भूमि की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहां आईक्यू की ज़रूरत है, वो केरल में हमें डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी को भी इंक्रीज करते हुए एक कंप्लीट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल केरल ने एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो केरल को आगे ले जाएगा और केरल के हर नागरिक के लिए ये मॉडल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर नागरिक को अपनी प्रतिबिंब दिखाई पड़े। हर नागरिक के लिए इसके अंदर स्थान हो, थिंकिंग हो। जो हो गया है उसको कम नहीं करना है, बढ़ाना है, मगर जो छूट गया है इसको भी लेकर आगे बढ़ना है। वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और यही हमारे विकसित केरलम का एक नींव है। मित्रों, हम सुरक्षित केरल भी चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपरेंटली देखने में ठीक दिखता है, मगर कई प्रकार के खतरे जब धीरे 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 बढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हमें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जब पीएफआई पर हमने बैन लगाया, दबे स्वरों में यूडीएफ और एलडीएफ ने इसका विरोध किया या समर्थन नहीं किया। मैं आज केरल की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टियां क्या केरल को एक रख सकती है क्या? जो सह अस्तित्व में नहीं मानते हैं वो कैसे केरल को एक रख सकते हैं? एक खतरों को शासन की जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने और
उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैं आज देश भर में जहां पर भी जाता हूं और कहता हूं कि हमने पीएफआई पर बैन लगाकर सारे पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश अपने आप को सुरक्षित मानता है। और इस सुरक्षित केरल का जो कंसेप्ट है वो पर्दे के पीछे हमें दिखाई न पड़े ऐसे अदृश्य खतरों को पहचान कर इससे भी केरल को सुरक्षित करना वो कंसेप्ट है। तो हम इसको मानते हैं कि विकसित केरल से अकेला न्यू केरल नहीं हो सकता, इसके साथ सुरक्षित केरल भी होना चाहिए। और मित्रों, तीसरा, जिसमें सभी की आस्थाओं का सम्मान हो। हर धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। मगर जब आप अपीसमेंट करते हो तो अपीसमेंट करते ही किसी के साथ अन्याय कर देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का शुरुआत किया। 4 करोड़ घर मकान गरीबों को दिए। इसमें किसी का धर्म नहीं पूछा है। हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, क्रिश्चियन को भी मिला। पानी भी सभी को मिला, अनाज भी सभी को मिल रहा है और इलाज भी सभी को मिल रहा है। जब आप सरकार चलाते हो तो सभी प्रकार की आस्थाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और जब सबरीमाला में आस्था का सवाल खड़ा होता है और सबरीमाला में प्रभु के खजाने में जो चोरी होती है, इस पर लिपापोती होती है, तो 50 सवाल शासन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जब आपके जनमानस की मैं बात करता हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं देखा हूं, मैं जनमानस की, जनता की नजर में जब डाउट आपके खुद के मंत्री पर है, मंत्रियों पर है, तो आप कैसे न्यूट्रल जांच कर पाओगे? न्यूट्रल जांच सिर्फ करना जरूरी नहीं है, जांच न्यूट्रल दिखना भी चाहिए। और कैसे आप जनता को विश्वास कराओगे? इसीलिए मैंने आज एक और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी है कि सबरीमाला के खजाने की चोरी का मामला, सोने की चोरी का मामला किसी न्यूट्रल एजेंसी के साथ जांच करानी चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि हरेक को शासन में विश्वास होना चाहिए। हरेक को शासन में, सरकार में, तंत्र पर विश्वास होना चाहिए। और वो तंत्र प्रस्तापित करने के लिए सबरीमाला के गोल्ड चोरी का एक प्रकार से जांच न्यूट्रल एजेंसियों को देना चाहिए। मैं आज यहां पर करप्शन की भी बात करना चाहता हूं। ये एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ, ये परंपरा ने करप्शन को बढ़ाया है। एलडीएफ के शासन में जो करप्शन होता है, यूडीएफ इसकी जांच नहीं करती है। यूडीएफ के शासन में जो करप्शन होता है, एलडीएफ उनकी जांच नहीं करती है। अल्टीमेटली दोनों करप्शन करते हैं। आज मैं यहां से केरल की जनता के सामने 343 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, इसकी जांच हुई क्या? नहीं हुई। एआई कैमरा का घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। लाइफ मिशन घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। पीपीई किट की खरीदी का घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। एक रिश्वत कांड यूडीएफ के समय में हुआ जिसमें 100 करोड़ का घूस लिया गया, जांच नहीं हुआ। सोलर स्कैम, जांच नहीं हुआ। पुल का घोटाला, जांच नहीं हुआ। ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर केरल की जनता को करप्शन से बाहर निकालना है, गवर्नेंस विदाउट करप्शन हम केरल में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो एक ही वे आउट है कि एनडीए की सरकार को एक बार मौका देना। एनडीए सरकार ही गवर्नेंस विदाउट करप्शन दे सकती है, डिलीवरी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दे सकती है, और विजन विदाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स दे सकती है। और तीनों चीजें बहुत जरूरी है।
गवर्नेंस विदाउट करप्शन, ये पारदर्शी गवर्नेंस लोकतंत्र को मजबूत करता है। डिलीवरी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो हमारे संविधान की मूल भावनाओं को ताकत देता है। और विजन विदाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स एक सर्वांगीण विकास का मॉडल खड़ा कर सकता है, और ये हमने देश में कर कर बताया है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है, और हमने केरल के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को पूछना चाहता हूं, 2004 से 14, 2004 टू 14 यूपीए का सरकार था, एक प्रकार से एलडीएफ इसका सपोर्ट करता था। आपने 10 साल में केरल के डेवलपमेंट के लिए कितना फंड केरल को भेजा, इसका आंकड़ा उन्होंने सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं मानता हूं केरल की जनता को अधिकार है कंपैरेटिव स्टडी करने का, कि आपने 10 साल शासन में रहे, केरल को क्या दिया, वो जानने का केरल की जनता का अधिकार है, क्योंकि वो केरल के प्रति आपका कितना लगाव है वो दिखाता है। अब वो तो देते नहीं है, मैं कई साल से पूछ रहा हूं, मगर मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं और केरल कौमुदी के इस फंक्शन में देना चाहता हूं। 2004 टू 14 72,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने दिया, 72,000 करोड़ रुपए। और 2040 टू 24 अगेंस्ट 72,000 3,23,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए सरकार ने भेजा, जबकि हमारी यहां सरकार नहीं है, यह एनडीए पावर में नहीं है। फिर भी पिनराई विजयन कहते हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। पिनराई विजय जी, अन्याय केरल को आपके शासन में होता था, हमारे शासन में नहीं होता था। आपने सिर्फ 74,000 करोड़ दिया था, हमने 72,000 करोड़ की जगह 3,23,000 करोड़ दिया है। अदर देन 3,23,000 करोड़ हमने 22,000 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया, 4,000 करोड़ रुपीस रोड डेवलपमेंट, 15,000 करोड़ रुपीस रेलवे के लिए और 3,000 करोड़ रुपीस एयरपोर्ट के लिए। ये 22,000 करोड़ हमने अलग दिया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अलापुजा, कन्नूर, कोची, कोल्लम, कोझिकोड, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और गुरुवायूर अमृत योजना के तहत इसका अपग्रेडेशन करने का काम किया। तिरुवनंतपुरम और कोची दोनों को हमने स्मार्ट सिटी मिशन में लिया और जन विकास कार्यक्रम में लगभग 19 कम्युनिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 130 करोड़ के फंड के साथ प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में लिया है। आप डेवलपमेंट की बात करते हो और डेवलपमेंट के कारण हमें मोदी जी केरल के साथ अन्याय करे ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो। मैं यहां पर पिनराई विजयन जी को कह कर जाता हूं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई भी कमी है या गलती है तो कल आप जरूर करेक्ट करेगा, वरना आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि केरल को अन्याय हमने नहीं, आपकी सरकार ने किया है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप आरोप कर कर, एलिगेशन कर कर भाग नहीं सकते हो। मैं आपके आरोप का स्पेसिफिक जवाब लेकर आया हूं कि आपने 72,000 करोड़ दिया था और हमने 3,23,000 करोड़ प्लस 22,000 करोड़ और कई सारी स्कीम्स दी हैं। क्या जवाब दे सकते हैं आप? फिर भी अगर मेरे आंकड़े को आप झुठला सकते हो तो आप जरूर जवाब देना। और मैं आपको कहता हूं, आपकी प्रेस का जवाब हमारे राजीव चंद्रशेखर कल 4 बजे देंगे अगर आप करोगे तो। मगर मुझे विश्वास है कि राजीव चंद्रशेखर को प्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। पिनराई विजयन जी जवाब ही नहीं देने वाले। फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर कर, फॉल्स एलिगेशन कर कर आप इस प्रकार का माहौल नहीं कर सकते। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि यूडीएफ एलडीएफ के चुंगाल से
केरल को बाहर निकलने की जरूरत है। एक नया जोश, नई सोच और नए उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टीम तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित केरलम के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ गए हैं, जिसमें विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी और आस्थाओं का, विश्वास का सम्मान भी होगा। एक कंप्लीट डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इसको केरल की जनता स्वीकार करेगी और इसी से न्यू केरल की रचना होगी। और न्यू केरल होगा तो ही न्यू भारत, विकसित केरल होगा तो ही विकसित भारत बन सकता है। ये मेरी फर्म बिलीफ है। फिर से एक बार केरल कौमुदी ने अब तक पत्रकारिता के लिए जो योगदान, रीजनल पत्रकारिता के लिए जो योगदान किया है, इसकी मैं बहुत मनपूर्वक प्रशंसा भी करता हूं, इसको एक्नॉलेज भी करता हूं और आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for that inspiring speech. And let me apologize for not having a translator, but we promise that there will be a translation made available to everybody here and also to the common public that they can understand better. I am sure that most of us have understood here, but we will certainly give a translation in the comings. Respected Honorable Minister for Home and Cooperation, Sri Amit Shah ji, Sri Deepu Ravi, Chief Editor of Kerala Kaumudi, distinguished guests, media friends, ladies and gentlemen. As we come to the close of this truly inspiring Kerala Kaumudi conclave team, the New India, a New Kerala, it is my happy privilege and distinct honor to propose a heartfelt vote of thanks on behalf of Kerala Kaumudi and all present here. First and the foremost, we extend our deepest gratitude to our esteemed chief guest, the Honorable Union Minister for Home and Cooperation, Sri Amit Shah ji, for the inaugural address that he delivered with grace, and for your august presence. Your visionary insights on security, good governance, and the path to a developed Kerala have truly illuminated our minds and strengthened our resolve towards a Vikasit Bharat that includes a prosperous Godson country. We are immensely thankful to Sri Deepu Ravi, Chief Editor of Kerala Kaumudi, for his inspiring presidential address and for conceptualizing this historic conclave as part of the Kerala Kaumudi's 114th anniversary celebrations. Our sincere thanks goes to Ms. Surabhi Krishna for the beautiful rendition of Vande Mataram, which set a divine tone to our technical team, media partners, hotel staff at Lemon Tree, and every member of the Kaumudi, Kerala Kaumudi family, Darshan Ravi, Joint Managing Director, Rajesh ji, and the whole of them who worked tirelessly behind the scenes to make this event a grand success. A special vote of thanks to Sri Rajiv Chandrasekhar ji for making this happen, and his team for the tireless efforts and leadership in making this historic Kerala Kaumudi conclave possible and bringing the Honorable Union Minister, Sri Amit Shah ji, to Thiruvananthapuram to inspire a new Kerala. A special word of appreciation to all the distinguished guests, Prakash Javadekar ji, Muralidharan ji, and all of you, the guests and delegates, the vibrant audience whose enthusiastic participation made today's discussions meaningful and memorable. As we carry forward the message of unity, progress, security, and holistic development, let us all commit to building a new Kerala as an integral part of New India. Kerala Kaumudi Conclave will continue with this initiative with a series, and I'm sure that you all will contribute towards it. Before I conclude, let me invite you all for a small high tea in the same hotel on the upstairs, and kindly join us for that. Once again, thank you. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai.